Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उदयन रे। उदयन, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अनुभा रोहतगी। Thank you, Manoj. Key domestic stocks log modest losses. Sensex closes at 57,997. Nifty finishes at 17,322. Rupee appreciates 26 paisa against the US dollar. Global equity markets inch up amid reports of de-escalation between Russia and Ukraine. And Brent crude prices hover around $94.50 per barrel. घरेलू शेयर बाजार मामूली घाटे के साथ आज हुए बंद। सेंसेक्स 57,997 दर्ज हुआ, निफ्टी 17,322 पर फिसला। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया हुआ 26 पैसे मजबूत और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $94.50 प्रति बैरल के आसपास पहुंची। वैश्विक बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बावजूद आज घरेलू शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच हुआ कारोबार और शुरुआती बढ़त गंवाकर प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी मामूली घाटे के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 58,000 के स्तर से नीचे आ गया, जबकि निफ्टी 17,300 के आसपास बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 145 अंक यानी 0.25% घटकर 57,997 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 30 अंक यानी 0.17% घटकर 17,322 दर्ज हुआ। छोटी और मझोली कंपनियों पर नजर डालें तो इनका प्रदर्शन मिला जुला दिखा है। हालांकि बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.03% की कमी आई, यानी ये लगभग फ्लैट रहा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से 0.42% लाभ के साथ बंद हुआ। The Sensex and the Nifty today witnessed modest losses, sparing early gains, even as the cues from global equity markets were positive. Amid high volatility, the Sensex closed below the 58,000 mark, while the Nifty ended around 17,300 level. The Sensex fell 145 points or 0.25% to finish at 57,997, while the Nifty lost 30 points or 0.17% to settle at 17,322. In the broader market at the BSE, the mid-cap index finished almost flat as it slipped 0.03% and the small-cap index gained 0.42%. In the Sensex pack, 10 companies logged gains while 20 witnessed losses. Bharti Airtel was the top gainer as it rose 1.4%, followed by HDFC which added 1.3%. Mahindra & Mahindra gained 1.1% and Dr. Reddy's Lab rose 1%. On the other hand, NTPC and SBI both plunged 1.6%. Ultratech Cement declined 1.5% and ICICI Bank slipped 1.4%. In sectoral indices, 8 sectors gained and 11 logged losses. Telecom gained the most as it appreciated 1.2%, followed by Realty which rose 1.1%. Consumer durables closed 0.7% up and healthcare added 0.5%. On the other hand, metal index declined 0.7% while Bankex and capital goods fell 0.5%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,998 companies gained while 1,359 fell. Shares of 96 companies remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज $1 की तुलना में रुपया 26 पैसे मजबूत हुआ, $75.08 के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में 0.15% घटकर 95.85 पर आ गया।
Udayan, Monday we saw a big fall. Yesterday we saw 3% rise, and today in the whole session from the morning till the time of the close, we saw a lot of volatility. Opened up, then it went into red, and then again it gained, and ultimately the markets closed in the red. How do you view this volatility? How long can we continue to, this volatility to continue? Well, the short answer would be till you see Federal Reserve actually taking some kind of a decision on in its March meeting. Now the question is, the biggest question which investors across the world, especially in the US, have is it going to be a 25 basis point rate hike, or it's going to be a 50 basis point rate hike, and how many such rate hikes will happen in 2022 and maybe in the beginning. So that will give people a whole idea of the degree of tightening that Federal Reserve is thinking about. Although Federal Reserve is the central bank of United States, what it effectively does, it determines economic sentiment and stock market sentiments across the world. This is something which we have seen in the past 2 years or so in a very big way. But having said that, there are two very important cues. Today, the reason for the volatility, according to me, is yesterday, of course, there was some kind of a relief rally. There was a relief that things didn't get out of hand at Ukraine. So there was a relief rally. Now, today, the market needs some kind of definitive cues, which actually is not available at the moment. Towards the end of the trading, there were even, market movements abroad, which possibly could have influenced. Today, there are going to be two sets of very important information that are going to come out from the U.S., one being their retail sales, and where an upswing is expected, and of course the minutes of Fed meetings. So everybody is waiting for that, and that, to my mind, will start influencing the course of the market in the next 24 hours at least. उदयन, हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे फेड की जो नीति संभावित होने वाली है ब्याज दर में बढ़ोतरी के मसले पर वहां, और दूसरी ओर दुनिया के कई अन्य प्रमुख केंद्रीय बैंक की ओर से भी ब्याज दर में बढ़ोतरी के संकेत दिए गए हैं। बढ़ाने का क्रम कभी भी शुरू हो जा सकता है। लेकिन वहीं चीन ने समस्त देशों से आग्रह किया है कि दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्ति हमारे होने पर, और हम दुनिया भर को सप्लाई किया करते हैं, यदि मुद्रास्फीति यानी कह लें कि ब्याज दर में इसी तरह से बढ़ोतरी का फैसला सब करते हैं तो उसका असर वैश्विक ग्रोथ पर पड़ सकता है। किस हद तक आपको लगता है कि चीन की अपनी नीति रहेगी और दुनिया के अन्य देशों की नीतियां आगे बढ़ेंगी? देखिए मनोज, जब अन्य देश एकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी कर रही थी, मतलब सपोर्ट कर रही थी, तब चीन ने अपना साइकिल टर्न पहले किया था। पिछले साल से उन्होंने अपना मॉनेटरी साइकिल टर्न किया था। अब वहां पे सॉफ्टनिंग, नरमी आई है इकोनॉमिक ग्रोथ में, सेंटिमेंट्स में ग्रोथ आई है, क्योंकि वहां पे इन्फेक्शन, थोड़े से लॉकडाउन्स हुए हैं, इन्फेक्शंस हुए हैं, उस तादाद में नहीं जिस तादाद में अन्य देशों, विश्व के अन्य देशों में हुए। तो वहां पे सेंट्रल बैंक और जो सरकार है वो सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अपने टेक कंपनीज पे क्लैम्प डाउन किया, रेगुलेट करने की कोशिश की, रियल एस्टेट को ठीक करने की कोशिश की है। तो उस वजह से सॉफ्टनिंग हुई है, जिसको वो सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि ग्लोबल जो इन्फ्लेशन है मनोज, वो मॉडरेट इस लिहाज से हो सकता है कि अगर अमेरिका में इन्फ्लेशन ज्यादा है, ब्रिटेन में इन्फ्लेशन ज्यादा है, और यहाँ पे चीन में उतना नहीं होता क्योंकि चीन नंबर 2 इकोनॉमी है वर्ल्ड का, तो एक मॉडरेटेड पिक्चर होने की, एक एवरेज आउट होने की उम्मीद की जा रही है कि ऐसी संभावना है। पर जहां तक अमेरिका के बारे में बात है, वहां पे रेट हाइक तो लगभग तय है, क्योंकि इकोनॉमी जिस हिसाब से चल रही है, जिस हिसाब से मुद्रास्फीति के आंकड़े आ रहे हैं, 40 साल में सबसे ऊंची मुद्रास्फीति है। अमेरिका में इन्फ्लेशन बहुत ही जबरदस्त पॉलिटिकल फैक्टर होता है, तो क्योंकि वो डेमोक्रेसी है, तो वहां पे इस चीज को मॉडरेट जरूर किया जाएगा कि ताकि सिस्टम ओवरहीट ना हो और बिल्कुल डैम्पन ना हो जाए। तो सवाल ये है मनोज कि कैसे वहां पे भी जो सवाल है, हमारे यहाँ पे भी वही सवाल है कि कैसे फेडरल रिजर्व, जो कि उनका सेंट्रल बैंक है, कि मुद्रास्फीति को टैकल करेगा बगैर आर्थिक वृद्धि को
चोट पहुंचाए। ये बैलेंसिंग एक्ट कैसे होगा? एक सर्कस आर्टिस्ट की तरह इसमें स्पीच की जरूरत पड़ेगी। We'll continue with the discussion, but after a short commercial break. बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया। सिंपल है छोटे, कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया। ओहो, तो ये बात है। हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे। बड़े भैया छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Welcome back to Market Mantra. We were discussing the stock markets and the way they have been behaving in the last few days. Udayan, of course, like you said, while the US Fed is the central bank of US, but it is in effect because it's the leading economy of the world, so it is also the central bank of the world in a way. But so far as Indian markets are concerned, the domestic investors have been the driving force to a large extent. In the last couple of years, we have seen since the lockdown that the number of retail investors have been increasing. And, you know, in a way, and do you think the Indian investors have also come of age, so to speak, and are much more intelligent now and much more savvy to take on all these, you know, to read the cues coming from global markets and then, decide, and which is why the Indian markets have been performing relatively well? Well, I think the jury would be out in terms of whether Indian investors have become savvy or not. Have they become effective? Oh boy, they really have become effective. Now see how foreign institutional investors have been moving out, taking money out of Indian markets. But our markets have gone nowhere. They haven't gone down. If you look about a month back, of course it has gone up, down, sideways, whatever you say. But it hasn't really fallen because of the exit, in a very big way, because of the exit of foreign institutional investors as they do their tactical play. That means that there is that wherewithal, which was not there, say, about 10 years back, which has come into our markets, where domestic investors say that, okay, just in case foreign institutional investors don't have confidence in our stocks and in our economy and in our story, we have the confidence and we are going to buy some more and we're going to go ahead. So that's what's keeping the markets wherever they are, you know. But eventually, when the monetary cycle turns across the world and, of course, in India, that will be the time when it will be ripe for us to evaluate whether our investors have become mature and savvy or not. In good markets, rising tides will lift all boats. But the question is, when the tides go low, how will the investors behave? Will they move away? Will they take smart decisions? That is worth looking at. And you're talking about the monetary policy when it turns, and by all accounts, likely to happen sometime in August, from what the analysts are saying, that RBI is unlikely to touch the rate till then. Right. I would agree with you on that. उदयन, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि हमारा जो निवेशक है वह कब समर्थ दिखेगा वो आने वाला समय बताएगा। यहाँ हम ये समझना चाहेंगे आपके माध्यम से कि भारतीय बाजार में जो एक रेजिलियंस दिख रहा है, एक मजबूती दिख रही है, उसमें योगदान मुख्य रूप से किसका है? घरेलू जो संस्थागत निवेशक हैं उनका, या जो कह लें कि पूरे पिछले कुछ वर्षों में जो एक SIP के माध्यम से नियमित निवेश करने वाले छोटे निवेशक हैं उनका मुख्य योगदान किसका हम मान के चलें? या किन की प्रवृत्ति दिखती है जो भारतीय बाजार में विश्वास रखते हुए इसको लगातार बनाए रखते, वैश्विक चलन के विपरीत भी? बहुत ही उम्दा सवाल है मनोज। ये हमने ये देखा पिछले 6-7 साल में, ये देखा शायद उससे ज्यादा में, कि सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, दूसरे इंश्योरेंस कंपनीज, दूसरे वित्तीय संस्थान जो हैं, उसके बाद जो प्रोविडेंट फंड्स हैं, रिटायरमेंट फंड्स, मैं हमारे देश के रिटायरमेंट फंड्स के बारे में बात करूं, इनमें ये सब निवेश कर रहे हैं मार्केट में। इसमें क्या हो रहा है, आप डायरेक्टली मार्केट में जाके आप खरीद नहीं रहे हैं, आपका पैसा निवेश हो रहा है, राइट? तो ये बहुत सशक्त हुए हैं, ये
विदेशी जो निवेशक हैं, संस्थान हैं, उनको काउंटर बैलेंस करते हैं। वो अगर बाहर पैसे लेके जाते हैं तो ये खरीदते हैं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। इसके अलावा मनोज, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो स्रोत रहा है, एडिशन रहा है, वो ये है कि निजी जो निवेशक हैं वो घुसे हैं पिछले 2 साल में, जो कि ऑनलाइन डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं या ऑनलाइन थ्रू म्यूचुअल फंड्स या संस्थानों से कर रहे हैं। तो ये आके और उन्होंने शक्ति दी है, जिसमें लोगों को, ऐसे लोग हमारे मार्केट में जो प्लेयर्स हैं, अब ऐसे लोग भी हैं जो हमारे देश के फ्यूचर के बारे में उनको कॉन्फिडेंस है, और जब जैसी बिकवाली होती है वो जाके उसको अपॉर्चुनिटी मान के खरीद लेते हैं। पर जैसे कि मैंने कहा, जब साइकिल टर्न करेगा तब कैसे और कैसा उनका बर्ताव रहेगा, कैसे वो बिहेव करेंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। श्रोताओं, यहाँ पर हम लेना चाहेंगे एक ब्रेक के बाद फिर से इन्हीं बिंदुओं पर हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। श्रोताओं, भारतीय शेयर बाजार आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ता दिख रहा है। छोटे निवेशक, संस्थागत निवेशक जो स्वदेशी हैं, भारत के हैं, उनका निवेश भारतीय बाजार में बढ़ रहा है, कह रहे हैं हमारे विशेषज्ञ उदयन। यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि धन का प्रवाह पूंजी बाजार में, शेयर बाजार में जो बढ़ा है आम निवेशकों का, चाहे वो संस्थागत निवेशक हों या म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करने वाले छोटे निवेशक हों, उसमें सरकारी नीतियां किस रूप में सहायक हुई हैं, उस पर भी थोड़ा सा हम समझना चाहेंगे कि सरकार द्वारा वित्तीय बदलाव के लिए, कह लें सुधार के लिए जो कदम उठाए गए, वो किस रूप में टर्न आउट होते दिख रहा है। देखिए मनोज, इसको अगर 1 मिनट के अंदर जवाब देना है तो 2 इम्पोर्टेंट कारण हम बता सकते हैं। सबसे पहला तो आपने जब मार्केट्स की जो रेगुलेशंस हैं और ट्रांजैक्शन, खरीदारी बिकवाली करने में जो जब आसानी कर देते हैं, आप एक मोबाइल फोन से कर सकते हैं, ऑनलाइन से कर सकते हैं, ब्रांच से कर सकते हैं, फंड्स का मूवमेंट आप फास्ट कर देते हैं, इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाता है, और कंपनियां आके आपको ये सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, तब तो ये बढ़ता ही है। आप देखिए ब्रोकिंग में कितना बढ़िया मूवमेंट हुआ है, कितने नए किस्म के ब्रोकिंग सर्विसेज आए हैं, जिसके वजह से लोग कम खर्चे में ट्रेडिंग, खरीदारी कर पा रहे हैं। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात यह है मनोज, जो बड़ी बात है वो ये है कि सरकार ने, पहले भारतीयों की जो बचत होती थी काफी कुछ रियल एस्टेट और सोने में जाती थी, और इस तरीके से ऐसी नीतियां अपनाई गई हैं कि ताकि लोग वहां से उठ के बाजारों में पैसे लगाएं। देखिए आप सोने का भी अगर आप देखें, उसको फाइनेंशियलाइजेशन किया गया, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इतना एक्साइटिंग प्रोडक्ट है, तो सोने में सीधा आप ना लेके आप सीधा वहां पे आ रहे हैं, और इसको बहुत अट्रैक्टिव किया गया है। और जो एक पैरेलल इकोनॉमी या आउटसाइड द फॉर्मल इकोनॉमी के जो ट्रांजैक्शन होते थे रियल एस्टेट में, उसको ब्लॉक किया गया है। ये सब करने की वजह से आपके जो बचत है वो सीधे आपके देश के विकास के लिए जा रहा है। जब स्टॉक मार्केट्स में आता है, बॉन्ड मार्केट्स में आता है पैसा, तो आपके देश के विकास के लिए जा सकता है। पहले तो लोग निवेश कर रहे हैं, फिर वहां से अगर टैक्स दे रहे हैं, तो ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत वर्चुअस साइकिल है जो बन सका है, और ये पहले नहीं था। ये पिछले 8-1 साल में ये तैयार होकर आया है। यानी जिस तरह एक नदी प्रवाहित रहती है तो ताजा जल आगे बढ़ते रहता है, इसी तरह धन का प्रवाह यदि विभिन्न दिशाओं में होते रहे तो धन कह लें कि और मजबूत होकर अपना प्रभाव कई क्षेत्रों में दिखाता, वो हम देख रहे हैं भारतीय पूंजी बाजार के माध्यम से और सरकार द्वारा उठाई गई जो सुधारात्मक कदम रहे उनके माध्यम से। बहरहाल खबरों का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। पहले ले लेते हैं एक छोटा सा विराम के बाद फिर से हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र।
बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है। सिंपल है छोटे कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जुड़कर बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, जब ढेर सारे पैसे होंगे उस दिन का इंतजार मत करिए, जितना भी पैसा हो इन्वेस्ट करना शुरू करिए। बड़े भैया अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। समझकर इन्वेस्ट कर। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशिया और यूरोप के शेयर बाजार, जहां आज तेजी का रुख दिखा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की आशंका घटने से निवेशकों में आज खरीदारी के प्रति उत्साह देखने को मिला। पिछले कुछ दिनों से दोनों देशों के बीच भू राजनीतिक तनाव काफी बढ़ा हुआ था, जिसके असर विभिन्न दुनिया के बाजारों में दिखे। आज निवेशकों में खासतौर पे खरीदारी की धारणा तेज रही है। निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से जापान का निक्केई 225 सूचकांक 2.2% लाभ के साथ बंद हुआ। हांगकांग के हिंगसेंग में 1.5% की वृद्धि हुई। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.6% लाभ में रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 2% के बढ़त में बंद हुआ। उधर सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 0.5% लाभ में रहा। यूरोपीय बाजार की ओर चलें तो वहां भी समाचार तैयार किए जाने तक लिवाली का सिलसिला दिख रहा था। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.2% बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। फ्रांस के CAC 40 और जर्मनी के डेक्स दोनों में 0.1% की वृद्धि चल रही थी। Moving on to the U.S. markets, Wall Street ended sharply higher yesterday as signs of de-escalating tensions along the Russia-Ukraine border sparked a risk on session. All three major U.S. equity indices witnessed robust gains. Tech and tech-adjacent stocks provided the biggest boost and pushed the Nasdaq Composite Index 2.5% up. The Dow Jones Industrial Average climbed 1.2% and the S&P 500 surged 1.6%. Moving on to commodities, global crude oil prices today recovered losses as investors weighed conflicting statements on the possible withdrawal of some Russian troops from around Ukraine. The crude prices rose amid tight global supplies and recovering fuel demand. In intraday trade, Brent crude was trading around $94.60 per barrel, while WTI crude prices were at $93.30 per barrel. Udayan, international crude prices have been skyrocketing for a while now, mostly to do with the geopolitical reasons, though they are not the only ones. So are we looking at $100 a barrel soon, as has been predicted by some analysts? What are the main issues here? Is it just the escalating demand or a supply problem? I think it's a lot of it has to be attributed to the supply problem. But today, I think market has taken cues from the fact that inventory levels in US and primarily in the US are very less. So you also take a look at not only the projected demand, but in terms of what people have in terms of in their reserves and inventory. If they become low, then that typically gives a upward nudge to the prices. That is what exactly has happened. And of course, over a period of time, if some of these geopolitical tensions, get eased up, we have a deal is happening in Iran, things should soften up quite a bit. But it's very important that it comes somewhere near $70 to $75, because all our budget numbers have been based on those figures. I was coming to that. You're talking specifically about India, and of course, our projections have been done, like you earlier said in the Money Matters program, that the projections have been on the basis of $70 to $75 per barrel. But right now, we are seeing, prices of upwards of $90. In such a scenario, how difficult is it going to be for the RBI, given that we just saw CPI figures coming out 6.1%, to keep the inflation at the 4 ±2 level that has been mandated by the government? Well, that's going to be challenge number one, if you ask me, because inflation hits you immediately and it hits everybody, and it hits everybody unevenly, because somebody who is not earning much, that person will get hit far harder by inflation than somebody who's affluent. So it's a no-brainer. So therefore, and you have so many of these challenges. You have this oil price challenge, which is not within our control. Most of our oil requirements are imported.
then we primarily sort of run on crude oil, gas. We're trying to increase the gas. We're trying to supplement gas and increase its usage. It's not going to happen overnight. Then there's the edible oil challenge. Then, of course, we have to reopen our economy, and once the income starts flowing in, people are going to demand more. And if the supply is not going to be all that great, because there's still supply chain issues all over the world, then there's going to be a pressure. So, it's for the better part of this year, I would expect inflation to be a very important challenge, which it will need some astute management, which the government and RBI can do. And it will probably need some imaginative steps. The government also and RBI also needs to look at very closely how things are developing across the world. You cannot just generally pick up some paradigm or some policy that's being followed by somewhere else and apply here. So we have to apply ourselves. We have to be imaginative, and I'm sure government along with RBI would be able to confront it. But it's going to be challenge number one as I see it. उदिन, हम आपका ध्यान तेल और ऊर्जा क्षेत्र की ओर ले चलना चाहेंगे। जब जब कच्चे तेल के दाम कह लें बाजार में बढ़ते हैं, आपदा की स्थिति आती है, तो तेल के भंडार के साथ साथ तेल का विकल्प क्या हो सकता है, कच्चा तेल का, उस पर चर्चा शुरू हो जाती है। वर्तमान जो वैश्विक हालात और भारत की स्थितियां हैं, उसमें कच्चे तेल के विकल्प के रूप में अक्षय ऊर्जा, यानी जिसे हम रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, या ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में कहां हम ठहरते और क्या हमारी स्थिति है? देखिए, हमने बहुत एम्बिशियस और बहुत ही बुलंद हमारे आकांक्षाएं हैं, हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं, एम्बिशंस है। हम महत्वाकांक्षी योजनाओं को हम लागू कर रहे हैं, तो उनके रिजल्ट पाने में मनोज वक्त तो लगेगा। आप एक चीज को एक फ्यूल बेस्ड फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंजन एंड उसके इस्तेमाल 100 साल से 150 साल से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको आप रातों रात पूरी तंत्र को कैसे चेंज करेंगे? तो 5, 6, 10 साल लग सकते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लगेगा। तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड है, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, विश्व भर हर जगह में ही चैलेंज होगा, चाहे वो सोलर हो या बैटरी हो, जो भी हो। जी, आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, नजर डालते हैं सर्राफा बाजार पर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज अप्रैल में आपूर्ति होने वाले सोने का मूल्य अंतर दिवसीय कारोबार में 45 रुपए घटकर 49,340 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। लेकिन मार्च में आपूर्ति होने वाली चांदी 190 रुपए उछलकर 63,180 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोने के मूल्य में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली है। सोने का मूल्य थोड़ा सा बढ़ा, $1,857.50 प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गया। वहीं चांदी भी मजबूत होकर $23.60 प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गई। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से उदयन, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Key domestic stocks log modest losses. Sensex closes at 57,997. Nifty finishes at 17,322. Rupee appreciates 26 paisa against the US dollar. Global equity markets inch up amid reports of de-escalation between Russia and Ukraine. And Brent crude prices hover around $94.50 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar. बड़े भैया, इस दोहे को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम दिखाड़े आपनो जग में हो फसाए। सिंपल है छोटे, कि बिना विचार किए अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाद में पछताएंगे और लोग हंसेंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, लोगों की बातों में मत पड़िए, इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर आज से ही करिए। बड़े भैया, अरे छोटे। भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। Market Mantra brought to you by National Stock Exchange. Market Mantra.